Today I will discuss the rest topics of chapter 14, electric current and its effects. In previous lecture I have explained about the symbols of electric component, this topic, and today I will explain about the heating effect of electric current. Heating effect of electric current. So first of all, see this picture. This is figure 14.10. This picture and this one. Okay. Today I will explain this. So first of all, heating effect of electric current, we should read about the activity 14.2. First of all, for doing experiment, you have to take an electric cell, a bulb, a switch and the connecting wires. Make an electric circuit by using these all, and this activity has to be done using only one cell. You have to use only one cell. Keep the switch in the off position. First of all, you have to keep the switch in the off position. Does the bulb glow? You have to find out that does the bulb glow or not. Does the bulb. Now move the electric switch to the on position. Now you have to do this in on position and let the bulb glow for a minute or so. Again touch the bulb. Do you feel any difference? After moving the switch back to the off position, touch the bulb again. Okay. So students, in figure 14.9, this is your figure 14.9. So in this diagram you have to see this. This is your bulb and this is your what? Positive and negative end. Okay. So this you have to touch this or you have to join this, then you can see the bulb glow. And when we are disconnecting this the bulb does not glow. Okay. In experiment or in activity 14.3, you have to take, just a minute, you have to make a circuit as shown in figure 14.10. This is your figure 14.10. Okay. Take about 10 centimeter long piece of nichrome. This one is your nichrome. Sorry, this one is your nichrome. Nichrome wire. This one is your nichrome wire. 10 centimeter. Okay, this is the sheet. And tie it between the nails. This one is your nails. In between them we have to tie it, the nichrome wire. You can get nichrome wire from an electric repair shop, or you can use a piece of discarded coil of an electric heater. Touch the wire. Now switch on the current in the circuit by moving the switch to the on position. After a few seconds, touch the wire. Do not hold it for a long time. Switch off the current, touch the wire again after a few minutes. So you can see from this picture, this is your nichrome wire. Okay. This one is your positive end and this one is your negative end. Okay. So by connecting this, what you feel, the wire get hot when an electric current passes through it. The wire get hot when an electric current passes through it. This is the heating effect of the electric current. This
heating effect. This is called the heating effect of the electric current. Can you think of any electric appliance where the heating effect of the electric current is used? You have to tell the name. Okay, make a list of such appliances. So student, this is the caution. During the experiment you have to focus on this. Do not keep the switch in the on position for a long time, otherwise the cell may become weak very quickly. The cell may become weak very quickly. So continuous, do not touch the wire. Everyone know about the heater. This is your heater you have at your home. You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. All these contain a coil of wire. This one is coil of wire. Okay, this coil of wire is called element. This one is called element. You may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. This is very simple common example. Bujo could not see element in an electric iron. Paheli told him that electrical appliances such as immersion heater, hot plate, irons, geysers, electric kettles, hair dryers have element inside them. Have you ever seen the element in any appliances? Element of electric iron. This is just below the bottom. This is at bottom side, element of electric iron. Through this you can easily iron your cloth. Glowing filament of an electric bulb. This one is example of glowing filament of electric bulb. The amount of heat produced in a wire depends on its material. Amount of heat produced in a wire depends on its material, which type of material you are using, length and thickness also. Thus for different requirement, the wires of different materials and different length and thickness are used. So dear students, you know that the heat produced in a wire, amount of heat produced in a wire depends on the material and length and thickness of the wire. The wires used for making electric circuit do not normally become hot. On the other hand, the element of some electric appliance becomes so hot that they are easily visible. The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it start glowing. Students बात कर रहे हैं, आप जब भी आप देखते होंगे तो सभी वायर जो आपके हैं वो जल्दी आपको कैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं, हॉट होते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ हैं जो हॉट होते हुए आपको दिखाई पड़ते थे, जैसे अभी आपने इस डायग्राम में देखा। यहाँ आपको वायर हॉट होते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन और सब केसेस में ऐसा आपको नहीं दिखाई पड़ता है। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर, द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक। अगर वायर में अगर हम करंट को पास कर रहे हैं किसी भी वायर से, तो लगातार या लार्ज अमाउंट में हम करंट पास कर रहे हैं, तो आपका वायर क्या कर सकता है, मेल्ट हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेकिन क्या पॉसिबल है? लेट अस चेक इट आउट। चलो हम पता करते हैं। Incandescent electric bulb are often used for lighting but they also give heat. जो ये बल्ब यूज़ किए जाते हैं, जो लाइट देने वाले बल्ब यूज किए जाते हैं घरों में, और ऑफन यूज्ड फॉर लाइटिंग, आपको किस लिए यूज़ किए जाते हैं? लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो आपको लाइट के साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट।
This is not desirable as it results in the wastage of electricity. The fluorescent light and compact fluorescent lamps, ये आपके CFL होते हैं, compact fluorescent lamp जो घरों में आप यूज़ करते हैं, आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्सेज। जो CFL होते हैं वो ज़्यादा आपको क्या प्रोड्यूस करते हैं, कम लाइट में, कम करंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अ डेज द यूज़ ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड LED, फुल फॉर्म ऑफ LED इज लाइट एमिटिंग डायोड, बल्ब इंक्रीजिंग। आजकल ये सब बहुत डिमांड पे हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा है। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट LED बल्ब कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ज़्यादा डिमांड है इनकी? क्योंकि ये कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं एज कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFLs। दैट CFL ज़्यादा भी ये इजली LED क्या होती है, CFL से ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि कम कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का। Thus LED bulbs are much electricity efficient and therefore being preferred. Okay. So you can see from this picture electric bulb, tube light, CFL and LED. This is your tube light CFL. It is advised to use electric appliances and gadgets which are electricity efficient. ये सभी को बताया जाता है कि आप जो electricity efficient बल्ब या अप्लायंस हैं या जो भी गैजेट्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली असाइन अ स्टैंडर्ड मार्क टू प्रोडक्ट कॉल्ड ISI मार्क विच इज एन एश्योरेंस ऑफ कन्फर्मिटी टू द स्पेसिफिकेशन गिवन ऑन द प्रोडक्ट। ये ISI मार्क्स जो होते हैं आपको कन्फर्मेशन देते हैं कि आपका प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है या स्पेसिफिक है, या कह लेते हैं कि ये एश्योर है, हम इसको अगर यूज़ करेंगे तो इसमें एश्योरिटी रहती है कि हाँ ये अच्छे हैं। इट इज़ देयरफॉर सजेस्ट टू यूज़ ISI मार्क्स प्रोडक्ट। इसीलिए सभी को कहा जाता है कि ISI मार्क्स वाले प्रोडक्ट ही आप परचेज करिए। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड CFLs कंटेन मरकरी वेपर। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFL होते हैं उसमें क्या होता है, मरकरी के वेपर होते हैं, टॉक्सिक, जो कि टॉक्सिक होते हैं नेचर में और आपको नुकसान भी देंगे। देयरफॉर डैमेज फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। इसीलिए कहते हैं जब भी ये ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इनको आप सेफली डिस्पोज करिए, नहीं तो ये टॉक्सिक नेचर में होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। दिस वन इज़ योर फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स। आपके घरों में फ्यूज़ यूज होते होंगे, आपने देखा होगा। ये फ्यूज़ है जो एक वायर से कनेक्टेड होता है। इधर एक्टिविटी के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। मेक द सर्किट, जस्ट वन सेकेंड, ओके। एक्टिविटी के थ्रू अगर हम इसको पढ़ें तो मेक द सर्किट वी यूज्ड फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेन। हाउएवर रिप्लेस द सेल विद द बैटरी ऑफ 4 cells. Okay, you have to replace the cell. Okay, ये आपका फ्यूज़ वायर है जो हम यूज़ करते हैं। ओके, सो एक्टिविटी 14.4 make the circuit we used for activity 14.3 again. However, replace the cell with a battery of 4 cells. तो आपको रिप्लेस करना है सेल को किससे, 4 सेल की बैटरी से। आल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई ए थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील ऊल। आपको नाइक्रोम नहीं यूज़ करना है, आपको स्टील का ऊल यूज़ करना है। ये क्या होता है स्टील ऊल? द स्टील ऊल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसाइल एंड इज़ अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप्स। आपको मिल जाएंगे इसलिए। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम स्विच देम ऑफ, आप उनको बंद कर दीजिए। नाउ फैन को बंद कर दीजिए रूम में हो तो। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम्स, अब आप सर्किट के थ्रू करंट को पास करिए कुछ देर के लिए। ऑब्जर्व द स्टैंड ऑफ स्टील ऊल केयरफुली, इसको आपको स्टैंड जो आपका
स्टील ऊल का जो स्टैंड है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। नोट व्हाट हैपेंस, डज द स्टैंड ऑफ स्टील ऊल मेल्ट एंड ब्रेक। देखिए क्या होता है, क्या ये मेल्ट या ब्रेक करता है, इसको आपको देखना है। So wires made from some special material melt quickly and break when large electric current are passed through them। तो अभी आपने पढ़ा कि वायर आपके ब्रेक कर सकते हैं अगर हम लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हों, पास कर रहे हों। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। यही वायर्स किस में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो यही फ्यूजेज इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। देयर इज़ ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करेंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। इसमें मैक्सिमम लिमिट में करंट रहता है जो कि सेफली किसी भी सर्किट में फ्लो कर सकता है। इफ़ बाई एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट, अगर बाई फॉल्ट कभी भी करंट ज़्यादा हो जाता है, द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड। ये वायर्स कैसे हो जाएंगे, ओवर हीटेड हो जाते हैं। एंड मे कॉज फायर, और कभी कभी आग भी लग सकती है, फायर भी लग सकती है। इफ़ आप प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट, अगर आपने प्रॉपर फ्यूज़ लगाया है सर्किट में, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। ये तुरंत क्या हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, टूट जाता है। A fuse is thus a safety device which prevents damages to electrical circuit and possible fire. So आपको क्या करना चाहिए, you have to use the fuse because it prevent damage to electric circuits and possible fire. So आपको use करना चाहिए इन fuses को। Fuses of different kinds are used in different purposes. 14.14 फिगर में आप देखिएगा। सो फ्यूजेज यूज्ड इन आवर हाउसेज, फ्यूजेज सोज इन 14.15 में जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज़ किए जाते हैं। और जो अभी आपने इसके ऊपर का ये वाला देखा, ये आपके घरों में यूज़ किया जाता है। ये वाला फ्यूजेज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, ये आपके घरों में यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो कॉशन, व्हाट इज़ कॉशन? Never try to investigate an electric fuse connected to main circuit on your own। अपने से इसको मेन सर्किट में मत ट्राई करिएगा। You may however visit an electric repair shop and compare the burnt out fuse with the new ones। आपको परचेज करना है, कंपेयर करिए बर्न आउट जो फ्यूजेज हैं उसको न्यू वन से। One reason for excessive current in electrical circuit is the direct touching of wires। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट क्या हो सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। अगर डायरेक्ट टच करते हो वायर को तब भी ये ज़्यादा करंट उसमें सप्लाई हो सकती है। दिस में हैपन इफ़ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर। अगर वायर किसी वजह से कट फट गया है, या कह दीजिए कि वहाँ की जो उसकी लेयर है ऊपर की वायर की प्लास्टिक की, अगर वो निकल गई है तब ऐसा हो सकता है। दिस में काज अ शॉर्ट सर्किट। Another reason for excessive current can be connection of many devices to a single socket। एक सॉकेट से बहुत सारे डिवाइसेस अगर आप चला रहे हैं तब भी ये ऐसा हो सकता है इसमें कि वो क्या कह सकते हैं, वो एक्सेसिव इसमें करंट हो सकते हैं। और वो डिवाइस कैसी हो सकती है आपकी, शॉर्ट सर्किट काज कर सकती है। दिस में कॉज ओवरलोड इन द सर्किट। ओके, यू माइट हैव रीड रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर्स अबाउट फायर्स काज्ड बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स। आपने न्यूज़पेपर में इस तरह की रोज़ खबर आप पढ़ते हैं। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज़ इट टू आवर एडवांटेज। हमको इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके यूजेस का पता होना चाहिए, क्या इसके यूजेस हैं। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफ़ेक्ट्स आल्सो। क्या इलेक्ट्रिक करंट पे और भी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ MCB, आर इंक्रीजली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं फ्यूजेस की जगह पे। दीज आर स्विचेज विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। ये वो स्विचेज होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएंगे। अगर ज़्यादा सप्लाई होती है करंट की तो अपने आप ये बंद हो जाएंगे। व्हेन करंट अपने आप मतलब क्या हो जाएंगे, बंद होने का मतलब टर्न ऑफ होना। व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट, अगर आपकी करंट सेफ लिमिट से ज़्यादा आ रही है तो यू टर्न देम एंड
on and the circuit in once again complete. Look for ISI mark on MCB also. तो आपको क्या क्या करना चाहिए, अगर ज़्यादा करंट आ रही है सेफ लिमिट से तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा, और आपको जब भी आप परचेज करिए तो इसके ISI मार्क को आपको देख के परचेज करना चाहिए। ये आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जिसका फुल फॉर्म इधर है, MCB। Caution: always use proper fuse which have been specified for particular application। हमेशा उस फ्यूज़ का यूज़ करिए जो कि स्पेसिफाइड हो, उसका एप्लीकेशन हो, कैरिंग ISI मार्क्स, और उस पर ISI मार्क्स लगा होना चाहिए। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ की जगह पे कोई भी मेटल का वायर आप नहीं यूज़ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, next lecture I will start your magnetic effect of electric current. I will start in next lecture. Okay, thank you.